جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ جو اللہ پاک نے فرمایا وہ حرام کر دیا گیا جس جانور کو ذبح کرنے کے بعد غیر اللہ کے نام پہ چھری پھیری گئی، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا گیا۔ اس کا مطلب، اس کی توضیح حاشیہ نمبر 13 ہے، کہتے ہیں یعنی ما ذبح للاصنام، یعنی بولو ما ذبح ما اہل به لغیر اللہ، ما ذبح للاصنام، جو ذبح کیا جائے للاصنام، بتوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے ذبح کیا جائے؟ وہو قول مجاہد، یہ امام مجاہد کا قول ہے اور ضحاک کا قول ہے، اور وہ قتادہ، اور کس کا قول ہے؟ اور قتادہ کا قول ہے۔ کس کا؟ دیکھو کتنا ظلم ہے کہ جو غوث پاک کے نام پہ بکرا ذبح کریں اور ذبح کرتے وقت غوث پاک کا نام نہ لیں، بلکہ ذبح کرتے وقت اللہ ہی کا نام لیں۔ کس کا؟ اور اللہ ہی کے لیے ذبح کریں، اور اس لیے کہ غوث پاک کا بکرا ہے، یعنی ثواب غوث پاک کو، جیسے ہم قربانی پہ کہتے ہیں یہ میرا بکرا ہے، یہ کس کا؟ وہ پوچھو، یہ جو فتوے لگاتے ہیں نا حرمت کے اور شرک کے، انہیں پوچھو کس کا ہے، کہتا ہے میرا ہے، تو کبھی غیر اللہ کا نام آگے شرک ہو گیا؟ حالانکہ یہ بات تو یہ تھی کہ جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے اس وقت وہ کافر بتوں کا نام لیتے اور بتوں کے لیے کیا کرتے؟ اسے ذبح کرتے۔ پہلی بات تو مومن بتوں کے لیے ذبح کرتے ہی نہیں، مومن ایک تو یہ بات پکی ہے۔ جاہل بھی آپ دیکھیے نا، جاہل سے پوچھ لو اس کو، وہ کہے گا اللہ کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا قرب کے لیے، تقرب اللہ، ذبح کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ کوئی بھی یہ بدبخت ہی ہوگا، کوئی نہیں ویسے کوئی ہوگا پھر جو ایسا کرتا ہو، کوئی مومن ایسا نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ کے لیے ذبح کرے، وہ کہتا ہے اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ ایک تو بات یہ ہے، اور یہ معذور الاسنام مجاہد کہتے ہیں، ضحاک کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اس میں قتادہ کہتے ہیں اس سے مطلب ہے وہ کافر بتوں کے لیے ذبح کرتے تھے، تو یعنی وہ بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کرتے تھے، بتوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ تو پھر بتوں کا نام لیتے تھے، دو آئی، بتوں کے لیے ذبح کرتے اور ذبح کرتے ہوئے بتوں کا نام لیتے۔ اب بتاؤ کوئی مومن ایسا ہے جو بتوں کے لیے ذبح کرے؟ ایک نمبر دو، وہ بتوں کے لیے اللہ کے قرب کے لیے کرتے ہیں، اور کوئی مومن ایسا بھی ہے آپ نے دیکھا ہو، جان سے جان دیکھا ہو، جب ذبح کرنے لگے تو وہ یہ بسم غوث پاک، بسم عبد القادر، بسم خواجہ معین چشتی، کوئی ہے ایسا؟ بسم اللہ، کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، یہی کہتے ہیں نا۔ اب بتاؤ انصاف سے بتاؤ، اس میں کوئی حرمت ہے؟ جیسا آپ کہتے ہو میری امی جی کا بکرا، تو کیا ذبح کرتے وقت کرتے ہو امی جی کے بکرے کے نام سے؟ یہ کرتے ہو؟ کوئی بھی ایسا بیوقوف نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نام سے ذبح ہے، لیکن یہ ثواب امی جی کے لیے، یا یہ جو اطاعت ہے، یہ جو واجب ہے، یہ امی جی کی طرف سے ادا، یہ ابو جی کی، میری طرف سے ادا، میری اللہ پاک فرماتا ہے محبوب کہہ دیجیے ان صلاتی و نسکی، محبوب کہہ دیجیے میری نماز اللہ کی ہے کہ حضور کی ہے؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے ان صلاتی، اب نماز پہ حضور کا نام بولا گیا، کیا یہ حرام ہو گیا؟ حرام ہو گیا؟ نماز اللہ کی، عبادت اللہ کی، لیکن اطاعت کس کی؟ کس کی طرف سے؟ حضور کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، تو حضور کی نماز یا نماز، اور نسو کی قربانی، میری قربانی اللہ کے لیے کہ حضور کے لیے؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے محبوب کو ہو میری قربانی، یعنی اب حضور کی طرف سے ادا ہو رہی ہے نا، اطاعت حضور کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن عبادت اللہ کی۔ تو اگر اس طرح نسبت کرنے سے بندے حرام کر رہے ہیں اور نعوذ باللہ یہ کر رہے ہیں، تو پھر بچے گا کون؟ اس لیے ہمارے ایک عالم دین تھے، اللہ پاک ان کی درجات بلند فرمائے، ہماری سی جامع مسجد میں بہت عرصہ پہلے، کتنے سال پہلے وہ آئے یہاں، ان کا نام تھا مناظر اسلام مولانا ضیاء اللہ قادری رحمہ اللہ تعالی۔ تو اس وقت آپ نے اس آیت کے ترجمہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم والخنزیر، یہ لوگ جو زیادتی کرتے ہیں اور سارے مسلمانوں کو مشرک بھی کہتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں یہ حرام کرتے ہیں، یہ غیر اللہ کے نام پہ کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا، چیلنج کیا تھا انہوں نے، چیلنج کیا کیا تھا ان کا چیلنج یہ تھا کہ یہ اپنے آپ کو اس موقف کے مطابق جو انہوں نے اہل سے زیادتی کی اور معنی بدلا، اس موقف کے مطابق یہ اپنا حلال کا ہونا ثابت کرتے ہیں،
अपना शायद उन्होंने कहा था चोर की सजा मेरी सजा, और मैं इनको इन्हीं के मौके में मतलब हरामदा साबित करूंगा। क्या करूंगा? बल्कि वो हो चुकी हैं, क्योंकि वो कहते हैं जिस चीज की निस्बत गैरुल्लाह की तरफ की जाए वो हराम है। वो क्या है? हराम। तो पता नहीं क्या कुछ फतवे लगाते हैं। तो हम पूछते हैं कि ये कपड़ा किसका? मेरा। ये बीवी किसकी? मेरी। माँ किसकी? मेरी। ये कमरे किसके? मेरे। ये बकरा किसका? मेरा। ठीक है, तो कहते मेरा नहीं, तो कोई और ले जाए तो जान निकल जाएगी। कहेगा मेरा। ऊंट किसका? मेरा। खोता किसका? मेरा। ठीक है, ये किसकी? मेरी। कहा गैरुल्लाह के नाम आगे बचा कौन? कहा क्यों लोगों को परेशान करते हो, क्यों माना बदलते हो? ये तो वो था कि ज़बा के वक्त जिस वक्त जानवर को ज़बा किया जाए उस वक्त अल्लाह के नाम के सिवा किसी और का नाम लिया जाता, फिर हुक्म आता। इस तरह तो कोई भी नहीं करता। ये सिर्फ एक तारुफ के लिए। किसके लिए? ये निस्बत होती है किसके लिए? एक पहचान के लिए कि गौसे पाक का बकरा यानी इबादत अल्लाह की, ज़बा के वक्त नाम अल्लाह का होगा, सवाब शहंशाह बगदाद की रूह पाक को होगा, सवाब दादा साहब को होगा, सवाब हमारी अम्मी जान को होगा, फलां को होगा। ठीक है, अब समझ आइए कि नहीं? गोश्त किसका? मेरा। तब गोश्त भी छाड़ दो, गैरुल्लाह का नाम आके किसी गरीब ने दो खाए, तुम क्यों जो है ना मोटे होते जा रहे हो? ठीक है, तुम्हारे लिए तो हराम है, तुम चूजे बनो और दो लोगों को और वो खाएं कि जिस पे ज़बा के बाद अल्लाह का नाम आ गया है वो गोश्त पाक है, वो गोश्त पाक है। आगे निस्बत अच्छों की हो जाए उनको सुबह सवाल तो बरकत और हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी समझ आइए कि नहीं? तो ये देखो शारी क्या कह रही हैं हाशिया में, मासूबी हरिल असनाम यानी तहा कतादा और मुजाहिद का कौल है कि उहिल्ल लिल्लाह से मुराद वो जानवर है जो काफिर बुतों के नाम पे ज़बा करते थे, वो बुतों का तकर्रुब हासिल करने के लिए करते थे। और आगे देखें, और अनस रबी बिन अनस और इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया यानी मा ज़ुकिर अलैहि गैरु इस्मिल्लाह यानी वो जानवर जिस पर अल्लाह के नाम के अलावा नाम ज़ब किया जाए, ज़बा के वक्त जिस पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया जाए तो फिर वो गोश्त भी हराम है। वो तो काफिर कहते थे बिस्मिल्लाह वल उज़्ज़ा, और उनका तो जैसे भी पूजा करते थे। वो मैंने बता दिया कोई मोमिन ऐसा नहीं, वो तो एक तकर्रुब इल्लाह करता है, तकर्रुब वो अल्लाह के लिए ज़बा करता है, अल्लाह का हुक्म मान के ज़बा करता है, अल्लाह का कुर्ब लेने के लिए, अल्लाह से अजर व सवाब लेने के लिए। और दूसरा जब वो ज़बा करता है तो अल्लाह का नाम लेता है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। तो यहाँ अदद जो है अनस रबी बिन अनस और इब्ने ज़ैद भी कहते हैं वो जानवर जिसे अल्लाह के नाम के अलावा पर ज़बा किया जाए, कहते हैं ये कौल औला है, ये कौल बेहतर है, ये कौल बेहतर है। क्यों? कहते हैं नौ अशद मुताबकत लफ्ज़ी, क्योंकि इसकी लफ्ज़ के साथ अशद मुताबकत है, लफ्ज़ के साथ सख्त मुताबकत है। क्या है? लफ्ज़ के साथ सख्त मुताबकत है। क़ाल उलमा, उलमा ने कहा लो अन्ना मुस्लिमन, अगर कोई मुसलमान, अगर देखो कहा लो अन्ना मुस्लिमन, अगर कोई मुसलमान ज़बीहतन ज़बह ज़बीहतन कोई जानवर ज़बह करता है व क़सद बिज़बह तक़र्रुब इला ग़ैरिल्लाह, अब देखो कहा अगर कोई करता है और वो उस ज़बह के साथ अल्लाह के अलावा के तक़र्रुब का इरादा करता है। क्या करता है? गैरुल्लाह का तक़र्रुब, इबादत गैरुल्लाह की, इस नीयत से वो जानवर को ज़बह करता है, सारा मुर्तदन वो मुर्तद हो जाएगा। देखा कितना वाज़ेह। मैंने कहा कोई मुसलमान ऐसा दिखाओ जो अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करे और अल्लाह के अलावा किसी के तक़र्रुब के लिए जानवर ज़बह करे। वो बुतों के पुजारी थे, और अगर कोई मुसलमान ऐसा करता है तो वो मुर्तद हो जाएगा। तक़र्रुब इल्लाह नहीं, अल्लाह के अलावा से कुर्ब हासिल करने के लिए और अल्लाह के अलावा की इबादत के लिए और उसका हुक्म ये करता है, मुर्तद या ज़बीहतन, या कहती हैं उसका ज़बीहा ज़बीहता मुर्तद के ज़बीहे की तरह हो जाएगा, उसका या तो मुर्तद हो जाएगा एक, और उसका ज़बीहा ज़बीहातु उसका ज़बीहा ज़बीहता मुर्तद के ज़बीहा की तरह हो जाएगा। जैसे मुर्तद जो है, पता है मुर्तद का, जो इस्लाम लाने के बाद कुफ्र करता है तो वो क्या है? आज कहते हैं जो कलिमा पढ़ गया जो मर्जी बके वो मुसलमान ही है। यानी ये नहीं पता कि वो मुसलमान काफिर से भी बदतर काफिर है, काफिर से भी जो इस्लाम लाया आला हुआ, लेकिन उसने जालिम ने अल्लाह का इनकार किया, रसूलुल्लाह का इनकार किया या बेअदबी की, गुस्ताखी की, तो वो इस्लाम से खारिज हुआ तो मुर्तद हो गया। तो मुर्तद जब जानवर पे छुरी फेरता है इतना मनहूस है कि जानवर भी हराम हो जाता है, हलाल भी, चाहे अल्लाह का नाम ले, चाहे
चाहे ये भी करे तक़र्रुब इल्लल्लाह, अल्लाह के कुर्ब का भी इरादा करे और ऐसे भी करे, फिर भी मुर्तद इतना मनहूस है, इर्तिदाद जो उसे मिल गया है, वो जानवर हराम हो जाएगा। इसी तरह वो मुसलमान जो जानवर को ज़बह करते हुए अल्लाह के अलावा के कुर्ब का और तक़र्रुब का इरादा करे, तो छुरी फेरे तो बस कहते हैं वो मुर्तद हो जाएगा, उसका ज़बीहा भी मुर्तद की तरह हराम हो जाएगा, मुर्तद के ज़बीहा की तरह। ये हुक्म फी गैर ज़बाई अहलिल किताबी, कहते हैं ये जो हुक्म बयान हो रहा है ना, ये किताबियों के ज़बीहे के अलावा है, यानी ईसाई मुर्तद नहीं है। ईसाई काफिर तो हैं, लेकिन कुछ बातों में हमारे साथ शरीक भी हैं, लेकिन वो काफिर हैं, ये नहीं कि काफिर नहीं है, काफिर वो हैं, तो इसलिए उनके हवाले से हुक्म हल्का है, उनके यानी काफिरों अहले किताब का जो को ज़बीहे हैं, अहले किताब की जो ज़बीहे हैं और ज़बहशुदा जानवर हैं, वो हमारे लिए हलाल है, वो हमारे लिए मुसलमानों के लिए हलाल है, ठीक है। व तआमुल लज़ीना ऊतुल किताब हिल्लुल लकुम, और उनका खाना जिन्हें किताब दी गई तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया। अब यहाँ जो ताम है ना, अब ऐसे भी मुफक्किर मिलेंगे, वो कहेंगे देखो जी अल्लाह पाक माता उनका खाना ले आना ना, बैठ के खाओ उन्होंने, देखो अल्लाह पाक में किताबियों का खाना हलाल है, किताबियों का। उन्होंने कहा तू कब का मुफक्किर बन गया, मुफस्सिर बन गया? कब मैं इधर बच्चा बना हुआ है, हम वैसे ही बने हैं जैसे बच्चे बने, ठीक है। हमने कहा वो मुफस्सिर नहीं होते, उन्हें खुद ज़रूरत है कि वो रुजू करें और उनकी इस्लाह की जाए, उन्हें पता चले कि अपने मनमानी से तफसीर नहीं की जाती, जैसे उलमाए हक ने की है उसी को माना जाता है, उसी तरह बयान किया जाता है। अल्लाह पाक फरमाता है वह तामुल, हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं ताम से मुराद उनका जानवर है जो उन्होंने ज़बह किया है। क्या है? यानी ईसाइयों यहूदियों का जो ज़बह शुदा जानवर है ये तुम्हारे लिए हलाल किया है, इनका हुक्म मुर्तद का हुक्म नहीं होगा कि मुर्तद छुरी फेरे तो हराम हो जाए, सही छुरी फेरे तो हराम नहीं होगा, हालांकि काफिर है लेकिन हराम। इसका ज़बह किया हुआ जानवर मुसलमानों के लिए खाना हलाल है। बैठना तो हर बद से बुरा है, ठीक है, तो ईसाइयों से भी बुरा है, यहूदियों से भी बुरा है, ठीक है। आगे मुआमलात की बात अलग होती है, इसकी समझ आई। अब आप थोड़ी सी इसकी वजाहत सुन लें, फिर इंशाअल्लाह ताला हम आगे जाकर इसकी मज़ीद वजाहत करेंगे। तो अब वो क्या है? एक है अल्लाह के अलावा तक़र्रुब, जानवर ज़बह करना नहीं, ये क्या हो? गैरुल्लाह के तक़र्रुब की, किसकी? और गैरुल्लाह की इबादत की, गैरुल्लाह की, और गैरुल्लाह के नाम पर ही उसे क्या करता है, यानी बुतों के नाम पे ये किसी और के छुरी फेरता है। वो आप ही भी तो, वो तो काफिर है पहले ही, वो तो काफिर की बात करता है, वो नहीं काफिर है और गैरुल्लाह की करता है, तो वो जानवर क्या हो गया? हराम, अल्लाह पाक ने हराम। दूसरा ये है मुसलमान है और तक़र्रुब फिर गैर क्या करता है? अल्लाह के अलावा, ठीक है। अब जब वो ज़बह करता है खुद तो मुर्तद हो गया, अब उसके ज़बीहे का हुक्म भी क्या है? मुर्तद के, वो भी हराम, वो भी। तीसरा ये है कि करता तक़र्रुब इलल्लाह है, करता अल्लाह की इबादत है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए वो जानवर ज़बह करता है, लेकिन ज़बह करते वक्त वो अल्लाह के नाम के अलावा किसी और का, गैरुल्लाह का नाम लेता है, गैरुल्लाह का, यानी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं कहता, बिस्मिल्लाह अब्दुल कादिर कह दे, बिस्मिल्लाह मोइनुद्दीन चिश्ती कह दे, तो इससे भी ज़बीहा क्या हो जाएगा? क्या हो गया? हराम, क्या हो गया? और ऐसा कोई मुसलमान नहीं करता, ना हमने देखा, ना हमने देखा। अब अगली तक़र्रुब इलल्लाह, अल्लाह के तक़र्रुब के लिए जानवर ज़बह करता है, जानवर, और उस वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लेता है, लेकिन कहता है कि ये बकरा गौसे पाक है, सवाब गौसे पाक को, सवाब फलां को, सलाम मेरी वालदा को, मेरे दादाजी को, फलां को, फलां को, तो यकीनन ये ज़बीहा हलाल है, ज़बीहा हलाल है, इस पे सवाब है और थोड़े से भी ज़्यादा सवाब है कि अल्लाह के कुर्ब के लिए किया, और इसके साथ फिर गौसे पाक को जो साले सवाब पहुंचाया उस पर भी सवाब है, वालदा दूसरों को भी सवाब पहुंचाया उस पर भी सवाब है, बिला शुबा बिला शक ये क्या है? हलाल। अब वो इस पे जो है ना कहते हैं जी उधर नजर मान दी, उधर नाम लिया, गौसे पाक का बकरा, हमने कहा क्यों ज्यादती करते हो, इधर ज़बीहा की बात हो रही है, तुम कह रहे हो इस तरह तो कोई बचेगा नहीं,
کہ فلاں کی طرف نسبت کر دے، فلاں کی نسبت کر دیں. تو میں نے کہا تو پھر کیسے حلال ہوگا؟ تیری بھی تو نسبت ہے، کپڑے میرے، فلاں میرا، میں فلاں کا، فلاں کا، فلاں کا، یہ میرا، یہ میرا، تو بچے گا کون؟ کیوں تم امت کو گمراہ کرتے ہو؟ وہ اللہ کی عبادت کی نیت کرے، تقرب کی کرے، پھر مسئلہ ہے. کوئی مسلمان ایسا نہیں غیر اللہ کی عبادت کر کچھ سوچ بھی سکے اور ارادہ بھی کرے. وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے ذبح کے وقت، اللہ کی عبادت کی نیت ہے اور اللہ ہی کے لیے اللہ کے نام لے کر ذبح کرتا ہے، لیکن تعارف کے لیے کہ سواپ ان کو، سواپ ان کو، سواپ ان کو. تو اس لیے کہہ دیا جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں کئی چیزیں ہیں، بقرہ عید میں بھی ایسے کہا جاتا ہے، قرآن پاک میں بھی چیزیں ہیں. بیر ام سعد کا کنواں. اب کنواں جو ہے ام سعد کا کنواں، تو ام سعد پر کنویں پر ان کا نام آیا تو غیر اللہ کا نام آیا تو کیا شرک ہو گیا؟ کیا حرام ہو گیا؟ نہیں، ایک متعین کر دیا ثواب حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ کا ہے اور یہ اللہ کی رضا کے لیے وقف ہے، اللہ کی رضا کے لیے وقف ہے. تو اس لیے میں نے کوشش کی کہ اس کو واضح کریں. مشکل انشاءاللہ ہم اس کے حرمت کے جو مسائل ہیں وہ آگے بیان کریں گے. اللہ جل وعلا سے دعا کہ ہمت کی توفیق عطا فرمائے.